And we welcome this beautiful actress, Evelyn Sharma. Can we please have a huge round of applause for her? Thank you so much for gracing this event with your presence. Okay, everyone's going to get a chance to play with us. But we'll have a performance now, like I told you, the surprise performance. So I request you to please kindly be seated. क्या कर रहा है? Yashika Kapoor and of course Rahul Sharma. A huge round of applause, जोरदार तालियां हो जाए एक बार please. थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए, आनी ना. And जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि एक सरप्राइज परफॉर्मेंस होने वाला है यहाँ पे स्टेज पर. We have the beautiful, gorgeous Bollywood singer Swati Sharma. इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए please. जिनने ये गाना गाया था, very famous. Which song was that? Any guesses? Banno Tera Swag. तो एक बार वापस जोरदार तालियां हो जाए for Swati Sharma. She was also the first Indian to perform at Eiffel Tower. तो उस बात पे भी एक बार please जोरदार तालियां हो जाए. And we have this performance where Swati will be singing for all of us. We will have amazing dancers, and of course we have Rahul and Yashika performing too. Wow! So can you please have a huge round of applause?
no one is going to leave the stage now. We know that Evelyn ma'am was there in the song. So ma'am, can we please have you on stage? And you have to do a little dance for us. Little bit. Just one step. One step. Can we have the music, please? So once again, a huge round of applause, please. Thank you so much, these amazing dancers. Thank you so much. And can we have the director of the movie, Mr. Rajiv Roy, on stage, please? A huge round of applause for sir. Okay, so Evelyn ma'am, can you tell us how was your experience working? It was fantastic. I think doing a big item song is every Bollywood actress's passion, and this song is fantastic. Swati, your voice is beautiful. Thank you so much. I think it's catchy. It's the choreography was done really well. It was shot fantastically. So I'm super happy to be here for Rahul and for Yashi to support them for their big launch. And please, everyone, make sure to watch the movie X-Ray, The Inner Image. It is scary. I'm just going to tell you this. And of course, it has fantastic music. So enjoy. I know we got the news that he plays the role of a psycho. So actually scared of you Rahul now. Okay, so thank you so much, We're going to watch the trailer of the movie X-Ray, The Inner Image once again. So I request you all to please be seated. We have already sung songs for so many movies. How do you feel that your brother is finally, getting launched in his debut movie? It's like a dream come true for us, and we as a family, we are all very happy for him. और सबसे ज़्यादा ये इसका सपना था, तो इसका सपना पूरा हो रहा है, तो we all are very happy. Yeah. तंग किया तो बहुत ज़्यादा कि सपना पूरा करो जल्दी. बहुत. ये डॉक्टर बनने गया था, फिर आकर के मेरे ऊपर उसने सोचा कि बॉम्ब फोड़ते हैं कि नहीं दीदी मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा. सोचो क्या सोच है करियर का, डॉक्टर से डायरेक्ट एक्टर. How come Rahul? मैं कोटा गया था एमबीबीएस करने के लिए एलएम में. वहाँ बैठ के भी मैं शांत नहीं बैठा. वहाँ बैठ के मैं यहाँ मुंबई में पोर्टफोलियो भेजता था, सेल्फी पिक्चर्स भेजता था लोगों को कि मुझे सेलेक्ट कर लो, एंड मैं पीठ पीछे काम भी करता रहता था कोटा में जाके. तो जब तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे तो पीछे ये सब कर रहे थे? हाँ. तभी मैंने क्रैक भी किया एमजीएम कॉलेज में मुंबई में एमबीबीएस. वाह, इस बात पे एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज. एमजीएम की वजह से मैं मुंबई आया था एडमिशन लेने के लिए. एंड देन ऑल ऑफ सडन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है, अब मैं एक्टर बनूंगा. यस, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर वेरी फर्स्ट फिल्म. थैंक यू सो मच, एंड I request you to kindly take your seats. Like I told you, just 2-3 minutes more and we have another surprise for everyone out here. Director of the film, Rajiv Roy sir, you're on stage. The producer, Pradeep K. Sharma. The co-producer, Anita Sharma ma'am.
The music director Raj Ashuji, can we have you here on stage, please? Shravani, is Shravani here? The choreographer, Adil sir is here, Adil Sheikh sir. Alka Khan, who's given the lyrics. Aditi Singh. Pankaj Banerjee, can we please have you on stage? Thank you so much for coming here. And Sunil Palji, can we please have you on stage? And of course, the beautiful Evelyn Sharma, can we once again have you on stage? साइड में से दे खाना पीना साइड में And of course, Swati. घर का ही है ना शीले को कि मैं आ जाती हूँ वैसे. So now I know that this is a suspense thriller, right? So सबसे मैं पूछूंगी कि जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे इस फिल्म की, which was the most scariest thing which happened with you, or was there anything scary which happened? Who's going to give me the answer? Rahul. सब राहुल के पीछे पड़े हुए आज. Scariest thing तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ थी हमारे लिए, but challenges बहुत थे, because being an actor बहुत सारे challenges face करने पड़ते हैं सबको, but ये एक ऐसी सस्पेंस फिल्म है जिसमें बहुत सारे challenges थे, तो जो भी स्टंट्स होते थे हमारे, जो हमारा कैरेक्टर था, तो बेसिकली वो सब प्ले करने का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, बिकॉज साइको बने इट्स नॉट एन इजी थिंग जो आप हो नहीं, बिकॉज मैं रियल लाइफ में बहुत ही जॉलीवुड इंसान हूँ, एकदम हंसता बोलता रहता हूँ, बट वो मुझे ऐसा ऑर्डिनरी कैरेक्टर प्ले करना था, तो मेरे लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग था, एंड थोड़ा स्केरी भी था, अभी मैं खुद को देख के डर रहा हूँ यहाँ पे. Okay. Can we have Parvez Bhai on the stage also? The main thriller behind the movie. His brains. इनके लिए जोरदार तालियां आ जाएगा please. So now I'm going to ask Yashika, were you actually scared of him जब shooting हो रही थी? हाँ, ऐसा मुझे डर लग रहा था देख के कि oh my god. We were in our role, like हम जब भी shooting पे होते थे, we were like हम एक दूसरे से बात भी ऐसे करते थे like he is my enemy. And did he do something? We were told to be like that because हम वो character जो play करना था उसमें पहले से ही पूरा play कर रहे थे और जब भी हम बात करते थे तो ऐसे करते थे like he is my enemy and I am he's like. And he's an actual psycho. Yes? नहीं ऐसा कुछ नहीं. नहीं, in the character I'm saying. Of course not actually I'm saying that. Okay, so which was your favorite part of the entire movie? ये आपकी भी debut film है. So which was your? इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए please for Yashika. So which was your favorite part of the movie? Actually, all the stunts were my favorite because it was the first time I was doing the stunts, and I have done all the stunts by myself only. And of course, Parvez sir, he is very supportive, and he has done a great job. He's the action director of the movie. Wow. So he was supportive. Very supportive. Were they good at the action, sir? Excellent. Wow. Clean chit मिल गया आप लोगों को. Okay. So now, Rajesh sir, your experience directing this beautiful movie. So first, I have to say कि ये फिल्म 7 कैमरा सेटअप है. इसका हर शॉट, हर सीन 7 कैमरा लगा के शूट किया था क्योंकि मैंने साइको परफॉर्म तो वो रीटेक में वापस से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसके लिए 7 कैमरा सेटअप पे
पूरी पिक्चर 7 कैमरा सेटअप में शूट हुई और they both have done a mind blowing work and of course Parvez bhai, it's 7 to 8 movie with Parvez bhai और I am very thankful to Raj Ashu जिन्होंने इतने अच्छे म्यूजिक दिए, स्वाति, श्रवणी and Elian and also so मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा, स्पेशली पंकज जी और सुनील जी जो आए यहाँ पर ब्लेसिंग देने के लिए न्यू बॉयज न्यू गर्ल्स को, और मैं चाहूँगा कि ये सब फिल्म आप लोग थिएटर में जाके देखिए। थैंक यू वेरी मच। थिएटर में देखेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ होगा वो थिएटर में ही पता चलेगा क्या होगा। इट्स अ वेरी गुड सस्पेंस, इट्स अ वेरी गुड सस्पेंस, इट्स अ वेरी सरप्राइज फॉर द ऑडियंस। जो ट्रेलर देख रहे हैं बाद में थिएटर में आके बोलेंगे अरे ये क्या हो गया। इट्स अ वेरी सरप्राइज। Okay, and yes, we've already asked you, but once again I want to ask you, how was it, like, you know, performing or shooting a dance sequence in a suspense thriller? I think every good Bollywood movie needs that dancey number, and of course when you're shooting a thriller or a suspense thriller, there is no space really for you know, the heroine and hero to break out in a dance suddenly. So usually we add like a really cool promo number. And I'm really grateful to be part of this project and to have been part of it with a song. And I feel like probably that was the only time in the whole movie shoot that Rahul was scared. Someone got him scared for the very first time. अरे बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। So a huge round of applause please, and can we also welcome Shakti Kapoor sir for gracing Sven with his presence. So can we have you on stage please? Pradeep ji, can we please have you on stage? And once again we are going to launch the music of the film. एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज एवरीवन। As you know, it's their both debut film. So, I wish the debut actors all the best. और जो मैं स्टेज पे देख रहा हूँ कि everything is glittering. ये देखो इधर आइए, ये चमक रही है, आप भी आइए. ये चमक रही है, ये देखिए. ये चमक रही है, ये देखिए. ये चमक रही है, अरे बाप रे, इधर देखिए. और ये देखिए. और वो देखिए और फिर ये देखिए. ऐसा लग रहा है कि इस फंक्शन से पहले हम सब ने एक मीटिंग की थी कि हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनेंगे. Anyway, I wish the producer all the best, the debut actor all the best, and हिमांशु जो हमारे मित्र हैं जिनकी वजह से आज मैं मंच पे खड़ा हूँ. ये बहुत कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है. So I wish everyone all the best and all the best for the movie. आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि ये फिल्म कितनी भाषाओं में रिलीज हो रही है. ये कुछ रिकॉर्ड तोड़ रही है. लोग बनाते हैं, मेरी बिटिया ने फिल्म की, वो 3 भाषा में थी, साहू, और ये कुछ 18 भाषाओं में. नहीं 7 भाषाओं में. 5, चलो 5. 5 भी मेरे हिसाब से वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है. Simultaneously releasing in 5 languages means a lot. Sir, good evening. आपको तो सर हेयर स्टाइल चेंज हो गया, जवान लग रहे हैं सर.
जब कोई नई फिल्म इनकी लगती है और 5 साल छोटे हो जाते हैं। So I wish everyone all the best in the media. सर वहाँ एक नई फिल्म रिलीज हो रही है हमारे दोस्त की, अच्छा ये यहाँ से वहाँ जाएंगे, हाँ हिमांशु। चलो anyway, I wish all the media all the best and please bless this film and I pray to God that this new debut actors become superstars. Thank you very much. Thank you so much, sir. Can we have again a huge round of applause for Shakti Kapoor, sir? Thank you so much for coming here and giving your blessings. And we'll have the picture now, the group picture. नीचे बढ़ जाओ, नीचे बढ़ जाओ। तांबे जी, तांबे। स्टील। स्टील खड़े रहो, स्टील खड़े रहो। स्टील। पे नहीं है। फोटोग्राफर भाई पीछे भी है लोग। राजेश भाई क्या दिखा रहे हो? कैमरे में आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है काम खराब हो जाएगा। Yeah, the trailer is very impressive and lovely faces in the film, and I wish the debut actors all the best. And trailer देख के तो थोड़ा ऐसा लगा कि it's a very happening film and very technically sound it looks. And then you have this girl who's doing a super song in the film, so it has to work, you know. So I wish everyone all the best. Title भी बड़ा अच्छा है, X-Ray. Tell us about your song and how was your experience? I think good music is one of the main ingredients in Bollywood, and it's my absolute pleasure to have done the item song in X-Ray. Of course, it's great to support new artists who are entering the industry, but always dancing is, of course, one of our reasons to get into the industry. And in a thriller, especially where it's so much about performance for the actors, it's hard to throw in a promotional number where they suddenly break out in a dance. So usually like someone else gets the pleasure of having the item song. So I'm really lucky. So all the best to you guys. Thank you, thank you. मैं इसको हिंदी में डब कर देता हूँ कि इनको बड़ी खुशी हुई है जिसमें इन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया है और ये म्यूजिकल है, इनकी म्यूजिक पसंद है, फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है और ये बोले कि मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ, तो सबको मेरा एक चैलेंज है कि मेरे जैसी डांसर वर्ल्ड में नहीं है। तो बिग हैंड फॉर हर। Thank you. हमने देखा है कि जितने भी नए डांसर्स होते हैं उसे हमेशा आप सपोर्ट करने आते हैं, क्या खास चीज़ें देखते हैं, अगर उस बारे में कुछ बताया? सर सबकी जर्नी होती है, मेरी भी जर्नी है, मुझे भी याद है कि मैं भी पहली फिल्म कर रहा था और एक बड़ा अच्छा फील होता है जब आप अच्छे न्यू कमर्स को देखते हैं जो हार्ड वर्किंग है, जो सपने लेके आए हैं अपने भविष्य के लिए, हार्ड वर्किंग हीरोइन है, हीरो है, कल को कौन कितना बड़ा स्टार बनता है कोई कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी होती है, मेरी भी जर्नी है, आज इनकी है, इनकी है, इनकी है, सबकी है। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट और मैं हमेशा ब्लेसिंग करूँगा मेरी तरफ से कि ये कल के बहुत बड़े स्टार बने। मेरे भी बच्चे न्यू कमर्स हैं, अब थोड़े आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा आशीर्वाद तो सब बच्चों को है, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ये है मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट टू देम।
आप बताइए, अब्बास मस्तान जी भी आए थे, शक्ति कपूर जी भी है यहाँ पर, कितना प्राउड फील कर रहे हैं, इतने अच्छे लोगों से जो है ब्लेसिंग मिल रही है आपको? मैं बेसिकली बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं बेसिकली बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। इधर सो मैं अरे शक्ति सर वेट सो मैं बेसिकली बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि अब्बास सर आए, अब्बास मस्तान सर आए, शक्ति कपूर जी सर आए, तो इसलिए ज़्यादा लकी इससे ज़्यादा लकी मैं अपने आप को मानता हूँ बिकॉज क्योंकि सर आए हैं और सर अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं बेसिकली, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहेंगे एंड ज़रूर मैं स्टार बनूँगा। हाँ, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। लता जी, आशा जी, उषा जी, ये सब मेरी फैमिली के रिश्तेदार हैं, मेरी वाइफ के फर्स्ट कज़न्स हैं। मेरी जो धर्मपत्नी है शिवांगी, मेरी साली पद्मनी, ये काफ़ी ये लोग थोड़े से व्याकुल है कि उनकी तबीयत कैसी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उनकी जो कंडीशन है वो बहुत सस्टेनिंग है, इम्प्रूविंग है। और हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि लता जी जो हमारे हिंदुस्तान की शान है, वो अभी 90 साल की हैं, भगवान करे वो 120 साल तक हमारे पास रहें, सोने का नगीना है। अच्छी खबर ये है कि उनकी तबीयत स्थिर है और वो बहुत जल्द अपने घर जाने वाली है। लेट्स ऑल प्रे कि लता जी हमारी जो हिंदुस्तान की शान है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और वो जल्दी से अपने घर जाएं और हम सब लोग उनके घर जाके, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं वो, उनकी मच्छी करी बहुत कमाल की है। थैंक यू। अब मैं निकलूँगा, एक और फिल्म का प्रीमियर है, वहाँ जाना है। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, लवली, ऑल द बेस्ट अगेन, लव यू ऑल। कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप? यार बिग बॉस 10:30 बजे शुरू होता है और मैं 10:15 सो जाता हूँ। आजकल क्या है, सुधरे हुए हैं, तो वो 10:30 शुरू होता है। मैंने सुना है कई बार 2 बजे तक चलता है। इतने झगड़े हो रहे हैं और झगड़ों की आवाज़ फिल्म सिटी से मेरे घर तक आ रही है। बट आई विश ऑल द बेस्ट, आई फील इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। मैं तो एक ज़माने में मैं भी गया था और मेरे साथ तो क्या हुआ था सबको मालूम है। मैं अकेला लड़का था और 13 लड़कियाँ थी। इधर भी देखो 1 2, अभी यार अभी छोड़ो यार, अरे बोले मेरे को तो गिनो मत। मैंने इनको अच्छा नहीं इनको तो, ये लड़की थोड़ा, ये तो मेरा भाई है यार। अभी देखो सब वो हो गई ना, हमें हटूंगा, ये शक्ति कपूर पार्ट 2 देखो। सर बहुत बड़ी बात बोल। ओके, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, अगर फिल्म की बात करें ओवरऑल फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लॉन्चिंग फिल्म इतनी अच्छी फिल्म से होगी, इतनी अच्छी स्टोरी से होगी। एंड अपने आप में फिल्म एक बहुत बड़ी चैलेंज है किसी भी एक्टर करने के लिए। कोई इच्छित है करने को, जिसको मन है करने का, उसके लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे फिल्म करने के लिए। एंड मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि भगवान ने मुझे दया दिखाई कि मैंने ये फिल्म करी। It was amazing experience as the co-actor was very good and very supporting, and जो मेन बात है कि वो स्टोरी होती है, जो फर्स्ट हम देखते हैं वो एक स्टोरी होती है और इस मूवी की स्टोरी में बहुत सस्पेंस है। व्हेन यू वॉच इन द थिएटर्स यू विल गेट टू नो कि कितना सस्पेंस है एंड तक। वी कांट दैट आई मतलब इतना ज़्यादा सस्पेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड आई थिंक दैट 5 लैंग्वेजेस में आज तक कोई भी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है एंड ये सेम डे 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है, तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, डर फिल्म आई थी शाहरुख खान, वैसा कुछ किरदार है आपका? तो मुझे क्या सुनाना है? सॉरी मैं समझा नहीं आपका सवाल। इसी तरह का कुछ किरदार नहीं, बेसिकली जब मुझे फिल्म के बारे में ब्रीफिंग हुई थी तो मुझे ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया था कि आपको लाइक शाहरुख खान जी का डर की तरह आपको करना है। इस साइड मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया गया कि ये कैरेक्टर ऐसा है। बेसिकली उसकी साइकनेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है, तो उसके ऊपर मुझे थिंक करने को बोला गया। एंड मैंने बहुत सोचा। फिल्म से पहले मुझे अच्छे से याद है कि मैं बैठे अकेले घर में रात में अंधेरा करके मैं बैठता था, मैं सोचता था कि कैरेक्टर कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा, क्या करेगा वो। इस जगह पर होता तो वो क्या करता, अगर अभी वो घर में अकेला है तो क्या करेगा। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता था घर में प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि शाहरुख खान जी ने तो बहुत तगड़ी एक्टिंग की थी, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ आज तक।
मम्मी ने नहीं डांटा नहीं, क्योंकि वो कहते थे दरवाज़ा क्या बंद करके रख रहा है, दरवाज़ा क्या बंद करके रख रहा है। मतलब अरे मुझे फोकस करने दो, फोकस मुझे मेरे कैरेक्टर में आने दो पहले। I think it's amazing when two actors do such a difficult movie for their launch movie. So I was very impressed seeing their performances. Really well done. Thank you. Besides this, any upcoming projects you'd like to share with us? No, tonight is about X-ray. So next time. आप देखते हो बिग बॉस करेंगे, आप देखते हो बिग बॉस वगैरह देखते हो, बिग बॉस देखती हैं आप? Do you watch Big Boss? Yeah, I watch it. It's very entertaining. क्या लग रहा है क्या मेरा well, usually I have some friends who are in the house, like Rochelle and Keith were in the house, or Ellie Abram was in the house. So then it's very exciting to watch and very entertaining. But yeah, it's fun. Also, captain of the ship is there. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे नबीश भाई में, कैसा कुछ कहना चाहूँगा? पूछिए। ये पहले तो आप सबको पता है फिल्म एक्सरे है, 29 को रिलीज़ है पिक्चर, और राहुल शर्मा और याशी कपूर इनका दोनों का डेब्यू है। पिक्चर एक थ्रिलर है और कुछ हटके है, साइको थ्रिलर है। पिक्चर में पहली बार आप देखेंगे कि 7 कैमरा के सेटअप पे ये फिल्म शूट हुई है। 7 कैमरा का सेटअप का मतलब मैं समझाऊंगा, क्योंकि एक साइको कैरेक्टर जब परफॉर्म करता है तो दूसरा टेक वो ऐसा नहीं दे पाता है। अगर वो तो इसके लिए राहुल के लिए हमने बहुत मेहनत की थी, और याशी के लिए जब ये लोग परफॉर्म करते थे दोबारा वो कटिंग मिलती नहीं थी। तो अब ये पूरा का पूरी की पूरी पिक्चर है जो है 7 सेटअप कैमरा पे शूट हुई है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इन दोनों का, इन्होंने बहुत मेहनत की है, स्टंट दोनों ने खुद ने किया हुआ है, और आपको लगेगा नहीं कि इन दोनों ने पहली बार एक्टिंग की है। सेकंड मैं थैंक्स कहूँगा राज आशु, स्वाति और शब्बीर भाई का, जो कि इतने हिट गाने हमें दिए हुए, प्लस इंक्लूडिंग दे ऑल। तो कहूँगा आप सबको कि एक बार फिल्म जाके देखिए, मज़ा आएगा फिल्म से। कैमरे के मतलब कहीं प्रोड्यूसर का बजट? सर प्रोड्यूसर का बजट उल्टी का और कम हो जाता है, सेकंड टेक होता ही नहीं ना, एक टेक में दी एंड हो जाता होगा। भले ही वो 5 बार हो, लेकिन एक टेक में दी एंड हो जाता है। कैमरा घुमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Also, सर कैसे ऑन बोर्ड आए दोनों डेब्यूटेंट है? और मैं एक्चुअली राहुल के साथ मैंने प्लान किया था एक शॉर्ट फिल्म करने के लिए, तो राहुल से कुछ परफॉर्म करवाया था। तब राहुल का देखा मैंने कि भाई वो शॉर्ट फिल्म में इतनी मेहनत कर रहा है तो फ्यूचर फिल्म चालू करनी चाहिए। तब मैं खुद गया था इनके डैड के पास, मैं बोला मैं राहुल के साथ एक फिल्म करना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्टोरी सुनी, इन्होंने सुनी, सबको बहुत पसंद आई। वैसे ये पिक्चर फ्लोर पे गई। फिर याशी है, बहुत सी एक्ट्रेस का हमने ऑडिशंस लिया, स्क्रीन टेस्ट, उसके बाद याशी फाइनल हुई है। और कुछ टाइटल एक्सरे, हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि एक्सरे क्यों। एक्सरे द इनर इमेज है एक्चुअली टाइटल। आदमी की अंदर की इमेज किसी को नहीं पता, और वो एक्सरे है। तो इसके अंदर की इमेज या इनके अंदर की इमेज, वो तो पिक्चर में आपको पता चलेगा किसकी इमेज खराब है। तो किसकी अंदर की इमेज अच्छी है खराब है, पिक्चर में आपको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, थैंक्स। स्वाति जी आप लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे तो मैं खुद ही साइड हट गई थी। सबसे पहले म्यूजिक इस फिल्म का बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बताइए किस तरह का म्यूजिक देखने मिलेगा ऑडियंस को? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर राज आशु जी हैं और लिरिसिस्ट शब्बीर सर हैं। और आपको ये बता दूं कि बहुत अच्छा म्यूज़िक है, और जो हमारा कल गाना लॉन्च होने वाला है जिगिलिया, ये बहुत ही पेपी नंबर है और बहुत जल्दी कैच होने वाला सॉन्ग है, ऐसा हम सबको फील होता है। और हमने बहुत दिल से बनाया है, तो हमें है कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो हमारा फिंगर क्रॉस है। आप बताइए थोड़ा सा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना चैलेंजिंग था? तो बहुत था, क्योंकि जिस हिसाब से गाने चल रहे हैं तो उसमें कुछ अपना नया करना, कुछ हिट देना, अच्छा देना। तो राज सर ने जब कंपोज किया, राज आशु ने कंपोज किया, और फिर हमको ये भी था कि यार स्वाति शर्मा का जो गाने हिट हुए हैं, इतने हिट हो, उसके बाद स्वाति शर्मा के साथ में गाना, तो उनको जहन में रख के लिरिक्स होने चाहिए, कैची होनी चाहिए, पैकिंग होनी चाहिए। और रैप में हम लोग टिक्का को लेके आए, तो बहुत मेहनत तो हुई, बहुत टफ हुआ, लेकिन मिला जुला के बहुत ज़बरदस्त गाना बना। और स्वाति शर्मा ने बहुत अच्छा गाया, काफ़ी उन्होंने गाने गाए हैं, सारे हिट गाने उनके
आ चुके हैं और राज आशु का और मेरा स्वाति का हमारा कॉम्बिनेशन हमेशा हिट रहा है। बारहवीं गर्ल के बाद हमारा ये गाना आ रहा है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत मेहनत किए। बाकी आपको आप बताइए कैसे? देखिए गाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत डिफरेंट रहा, क्योंकि जब कल आप गाना सुनोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शब्बीर भाई ने एक डिफरेंट गाना लिखा है। मतलब इसके वर्ड्स बहुत ही अलग टाइप के हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो एक नॉर्मल गाना नहीं है, आप सुनोगे तो एक फन वाला गाना है, मस्ती देखने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। उतना ही अच्छा स्वाति ने गाया है जितना अच्छा भाई ने लिखा है, तो बहुत अच्छा गाना बना है ये। म्यूजिक टीम यहाँ पर है, 2 लाइनें जी हाँ 100% होगा, लेकिन सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि पूरा गाना सुनने के लिए आपको कल तक का बैठा। रात की बेला में मैं चांद निकल गई, होश मुझे आया तो है जान निकल गई, सुरूर चढ़ा रे, जिगलिया 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 रे, जिगलिया जिगलिया जिगी जिगी रे, जिगलिया 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 रे, जिगलिया जिगलिया जिगी जिगी रे। थैंक यू सो मच। Thank you.